Hello friends, last lecture we discussed Super 40 part 1. In part 1 we solved 15 most type questions associated with capacitor and capacitance. So today we will move towards the next 25 questions, and these 25 questions are also very IMP. Last lecture I also mentioned, if you cover these 40 questions very we can say that logically and understand very fundamentally, then I can surely say you can simply become a champion of capacitor and capacitance. And these 40 questions are selected in such a way that each and every case or segment of capacitor can be covered. So friends, without wasting time, we'll start the question number 16. You know that very well. So most IMP paper number 2, and obviously here one most important point, the question paper of this part 2 also available on websites www.physicsbygopalsir.com. So those students who have no idea about the questions, they can take reference from website. So question number 1, we'll start with the question number 1. Here a parallel plate capacitor has capacitance 100 picofarad and plate area 100 centimeter square, and a mica dielectric is inserted. So just concentration required. This type of parallel plate capacitor is shown in this diagram. Its capacitance already given, C 100 picofarad. Area of this plate is also given 100 centimeter square. Now dielectric material is inserted. You can see dielectric material mica is inserted. Its dielectric constant is 5.4. So what's the question? Your target to find, initially this capacitor was connected with a battery of 50 volt, and after removal of battery, mica sheet is inserted. So what's your target? Your target to find charge on the capacitor after inserting mica and electric field between two plates of capacitor. So friends, you know that very well. This is the most important point. First of all, you know that very well. Whenever dielectric material is inserted between two plates of capacitor, then you have to think about 2 points. Number 1, whenever dielectric material is inserted, then battery is removed or not. If battery is removed and after that dielectric material is inserted, then charge remains constant. Charge is the hero. So here charge remains constant because after removal of battery, dielectric material is inserted. So what is the charge? So charge Q is equal to simply CV. C here 100 picofarad, so minus 12, and battery of 50 volt. So here obviously 5 into 10 raised to minus 9 coulomb charge deposited. Now we think about the electric field, most IMP. Suppose these are the two plates of capacitor in absence of mica, that means the type of medium air. In this situation, what is the, we can say, electric field? It is E naught. So after inserting dielectric material, what happened with the electric field? Once again, check the case. Whenever dielectric material is inserted and the battery is removed, then electric field becomes 1 upon K times. ये सब shortcuts हमने discuss किए हैं. So electric field becomes E naught by K. E naught is the electric field before inserting dielectric material. So E naught is not given. So don't worry, here charge with us, area given. Keep in mind, whenever you are dealing with any competitive examination question, then think about the additional information. ये additional information बहुत ही important role play करता है हर बार. इधर देखो कैपेसिटेंस का यूज हो गया, पोटेंशियल हो गया, अब बचा कौन सा? सिर्फ और सिर्फ एरिया. मतलब एरिया का कुछ पर्टिकुलर रोल है किस तरह. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, or generally electric field always equal to sigma by epsilon naught. You know that electric field between two plates of capacitor for air, sigma by epsilon naught. So here E naught sigma by epsilon naught K. But sigma is the surface charge density. So surface charge density, that means charge upon area. So epsilon naught K. So finally electric field E is equal to Q upon A epsilon naught K. So now in this equation, charge already with us, we have found. Area already given, don't worry. Epsilon naught 8.85 10 minus 12, and dielectric constant for mica 5.4. Set up the values.
you will get answer in order of 1 into 10 raised to 4, something type of answer. Yes, it is 1 into 10 raised to 4 volt per meter. So here answer 1 into 10 raised to 4 volt per meter. So this is your 16 number question. Very interesting and IMP. Don't forget, whenever you insert dielectric material, then you have to think about battery. If dielectric material is inserted after removal of battery, then charge is the hero, and in presence of battery, then potential is the hero. Now question number 17. You know that question number 17. So this type of 3 plates are already arranged, A, B, C, and plate number B, if you observe very carefully diagram, it is connected with the negative plate or negative pole of the 12 volt battery, and like this one. So for this type of structure, we have to find energy stored in the system of these 3 plates. So very easy. What is the formula of energy stored? Energy stored, U is equal to 1/2 CV square. V already with you 12, but there is question about capacitance. तो ऐसा मेथड हमने सीखा है और इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ. जब भी ऐसी कंडीशन आए, ऑलवेज थिंक अबाउट बैटरी. पहले बैटरी को रिप्रेजेंट करो. तो देखो प्लेट ए का टाका बीड़ा है प्लेट बी के साथ. तो प्लेट ए पॉजिटिव पोल के साथ कांटेक्ट में है 12 वोल्ट का, और बी है वो नेगेटिव पोल. चेक इट. प्लेट ए ऑलरेडी इन कांटेक्ट विथ पॉजिटिव पोल ऑफ द 12 वोल्ट एंड प्लेट बी ऑलरेडी इन कांटेक्ट विथ द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी. सो पॉजिटिव पोल already connected with plate A and negative plate, here a negative plate. B plate already in contact with negative plate, so B plate already in contact with negative plate, and these two plates form a capacitor. पहला capacitor बन गया AB का case file. Now BC, plate B and C form a capacitor. Plate B already negative pole, plate C positive pole. So positive pole में से plate C और नेगेटिव प्लेट में से प्लेट बी. You can see. So here two capacitors are connected in parallel. So what is the NAND capacitance? Obviously NAND capacitance C plus C. ये है आपका C, ABC. So 2C and C here epsilon naught A upon D. So what is the energy stored? It is 1/2 epsilon naught A upon D into V the whole square. Now all values with you, just check it. All values with you. 1/2 area of plate given, analyze. V 12 volt, distance between two plates I think 3 mm given. Epsilon naught, you know that very well. Set up the values, and if you simplify, then answer 2.9 nanojoule, approximately 2.9 or 2 nanojoule. Sorry, there is a 2 nanojoule. So this is your answer, 2 nanojoule. But energy, okay, very easy, but this capacitance, formation of capacitor because of the system of these 3 plates, it's very important for this question. So analyze. इसके लिए बैटरी का स्ट्रक्चर देखने का. Now we'll move towards the question number 18. now क्या करना है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के लिए? बेहतरीन फॉर्मूले पावर लर्न करो और सभी 40 क्वेश्चंस को सोल्व कर दो. क्वेश्चन नंबर 18, ये भी IMP. A parallel plate capacitor has free charge of 5 nanocoulomb on its plates. This is the parallel plate capacitor, and here charge 5 nanocoulomb. Okay. Now if mica dielectric is inserted between the plates of capacitor, then due to polarization the charge on the mica will be blank. देखो लास्ट पार्ट जिसने देखा होगा उसको पता चलेगा, बाकी लोगों को प्रॉब्लम. ये हमने माइका इंसर्ट किया. हमने देखा था जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करो तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर्स की. जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे चार्ज इंड्यूस्ड होता है. इस चार्जेस को हमने बोला था बाउंड चार्जेस. सो व्हाटएवर द चार्ज गेट इंड्यूस्ड ऑन द सरफेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दिस चार्जेस आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस. वी वुड लाइक टू फाइंड दिस इंड्यूस्ड चार्ज. तो इंड्यूस्ड चार्ज का शॉर्टकट हमने डिराइव किया हुआ है. अगर आप बहुत ही अच्छी तरह इंड्यूस्ड चार्ज का शॉर्टकट हमने JEE नीड्स डिस्कशन में किया था कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस,
तो ये शॉर्टकट तब हमने डिराइव किया था 1 माइनस 1 बाई के. Those students who have no idea, they can directly remember. So Q naught is the initial charge. It was 5 nanocoulomb, so 5 into minus 9. K is not given, but mica, what is the dielectric constant for mica? 5.4. If you simplify, then your answer will be 4 into 10 raised to minus 9 coulomb. Ready? This is your answer. Approximate 4 point something Q induced. So this is the Dhum equation for JEE NEET. Very IMP upper segment numerical में इसका use होगा, most important. So now I move towards the next question number 19 now. Okay friends, so now question number 19. This is very IMP. Question number 19 now. These are the two plates of capacitors separated by distance t. Here already air is filled. Then what is the capacitance? It is epsilon naught A upon T. Now the same capacitor, you can see same capacitor separated by distance T. Now a dielectric material is inserted, you can see. What is the thickness of it? T by 3. What is the thickness of this dielectric material? T by 3. And having dielectric constant not given, don't worry. But what's your target? This is a metal foil of thickness, metal foil. So this is metallic foil or metallic slab is inserted between these two plates of capacitor. Then what's the new capacitance? So we have already shortcut. New capacitance C dash is equal to epsilon naught A upon D minus T minus 1 by K. याद करो, most IMP. Okay, so now T here thickness, D is the distance between two plates. What is the distance between two plates? T. So D here T is the thickness. What is the thickness? T by 3. So we'll set up the values. Epsilon naught A, instead of D there is T, instead of T there is T by 3, 1 minus 1 upon, रुक जाओ, चिकना केस K. What is the meaning of K? Dielectric constant. And what is the value of dielectric constant for metal? For metal it is infinite. So 1 upon infinite, that means 0. So finally I can write C dash. इसका एलसीएम ले 3t minus t 2t और 3 गुलाटी मार के ऊपर. So 3 epsilon naught A upon 3t minus t 2t. But what is this epsilon naught A upon t is the C. So we can write C dash is equal to 3 by 2. But epsilon naught A C already given 100. If you check the data, so answer already 150 microfarad. This is the new capacitance. This is the most IMP formula after inserting dielectric material of thickness T. Don't forget K plays very important role for metal infinite. इसी का related एक और question discuss करते हैं ताकि आपके concept और बने. Now we think about question number 20. So 20 पे पहुंचे. So 20. Now this type of 3 plates already, or between these two plates there are 3 layers, 1 2 and 3, 1 2 3. Here dielectric material having dielectric constant 1, intermediate plates of copper, and here dielectric material of dielectric constant 2. चलो इसका नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है. मैंने कितनी बार बोला ये हॉरिजॉन्टल में नहीं, वर्टिकल में रख दो, इस तरह उठा के यूं कर दो, तो ये कर दिया. और ये 3 लेयर्स को देखो. अब ये लेयर है 2 वाला, ये है कॉपर और ये है 1. अब यहाँ से चार्ज को एंट्री करवाओ. ये चार्ज जैसे ही ये प्लेट को मिलेगा, आप देखो हर एक पोर्शन को इक्वल चार्ज मिलेगा. यहाँ से चार्ज इधर जाएगा इधर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होने के कोई चांस ही नहीं है. सो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर दिस 3 सेगमेंट्स. इफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज. सो नाउ दिस 2 प्लेट्स फॉर्म अ कैपेसिटर C1, then next 2 plates another capacitor C2, then last 2 plates third capacitor C3. So what is the net capacitance? C net is equal to 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3. Okay, चलो C1 C2 C3 का फॉर्मूला. सो C1 यानी ये पोर्शन का कैपेसिटेंस. मैंने कितनी बार बोला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करो तब कैपेसिटेंस K गुना हो जाए. तो K इधर 2 और मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट A. मगर ये जो टोटल D था उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है D by 3. सो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 6 नॉट अपॉन D.
इसी तरह C2 फाइंड करते हैं, तो C2 में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो नहीं, मेटेलिक मटेरियल कॉपर, तो कॉपर का जिसे कह सकते हैं कि के होता है इनफाइनाइट, तो मैं बाकी कुछ नहीं लिखूंगा, सिंपली इनफाइनाइट। अरे बाकी कितना भी मल्टीप्लाई करो इनफाइनाइट के साथ, इनफाइनाइट। और अब C3, तो C3 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, सो 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, इसका भी थिकनेस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स d/3, सो 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये तीनों वैल्यूज इधर रखते हैं, सो 1 अपॉन C1 ये रहा, तो इसको अपन लोग लिखते हैं ऐसा 6 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इधर 1 अपॉन इनफाइनाइट और इधर 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर जिसे कह सकते हैं कि आएगा 2d यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दैट्स योर आंसर। अब इधर से सिंप्लीफिकेशन ना आए तो जे डबल नीट के बारे में सोचना नहीं है, इंस्टेड ऑफ जे डबल नीट थिंक अबाउट जी, ओके, 1 अपॉन इनफाइनाइट यू नो दैट 0। सो वेरी इंटरेस्टिंग, ये हमने सीखा हुआ है और एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है प्रैक्टिस टाइम पे। वीडियो लेक्चर्स अच्छी तरह देखना, ये आपको कहाँ ना कहाँ दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 21। सो ऑल क्वेश्चंस आर वेरी आईएमपी। क्वेश्चन नंबर 21, ये धांसू, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। 21 number, this type of capacitors are given, you can see this is the first loop and then there is second loop. You can see all values same, C. Find the net capacitance across AB. मस्त क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस। ओके, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द फर्स्ट लूप। काफी स्टूडेंट्स फर्स्ट लूप को देख के सीधा एक स्लोगन अप्लाई करते, 5 मतलब कोक, 5 मतलब विस्टन ब्रिज, 1 2 3 4 5 मतलब विस्टन ब्रिज। सॉरी, दिस इज नॉट विस्टन ब्रिज, बट दिस इज, यू कैन सी दैट छलावा, ये आपके साथ छला हो रहा है। क्यों? क्योंकि विस्टन ब्रिज को आइडेंटिफाई करने का फंडा मैं बताता हूँ। इधर विस्टन ब्रिज है, ये दोनों पॉइंट्स चेक करो, जिसके अक्रॉस आप पीडी अप्लाई कर रहे हो वो पीडी है, जो दो पॉइंट्स के बीच में अक्रॉस होता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स ही होते, कोई वायर यानी कि नहीं होता। यानी कि जो दो पॉइंट्स के बीच में पीडी अप्लाई करो उसको परपेंडिकुलरली कैपेसिटर होता है। देखो ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस परपेंडिकुलर है, जबकि इधर ये दोनों पॉइंट्स देखो, ये दोनों पॉइंट्स को परपेंडिकुलर कैपेसिटर नहीं है, अलोंग है, यू कैन सी। तो जब भी दो पॉइंट्स के बीच में पीडी अप्लाई किया जाए, ये 5 का पंच है तब, और वो दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्ट हो हॉरिजॉन्टली, मतलब ये अपना केस विस्टन ब्रिज का नहीं है। तो कैसे होगा देखो, फर्स्ट बहुत इजी, दिस टू आर इन सीरीज, लोअर ब्रांच टू सीरीज, सो सी ऑब्वियसली हाफ C/2, second branch C, lower branch again 2 capacitor in series, so C, so here C/2, ready। अब इधर देखो ये मोस्ट टाइम ये विस्टन ब्रिज है, सो दिस इज C1 C2 C3 C4 C5। पहले C1 C2 का रेशियो लेंगे, क्यों? ब्रिज बैलेंस में है कि नहीं चेक करेंगे। सो टेक द रेशियो ऑफ दिस टू कैपेसिटर्स, सो C/C1, देन टेक द रेशियो ऑफ दिस टू कैपेसिटर C/C1। तो ये ब्रिज है, बैलेंस में है, बैलेंस कंडीशन, देन देयर इज नो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कैपेसिटर, तो बचा केम से ये दोनों कैपेसिटर और लोअर ब्रांच, बट दिस टू आर अगेन इन सीरीज, तो इसका नेट कैपेसिटेंस होगा C/2 और इसका भी होगा C/2। सो ये आपका ये और ये आपकी जर्नी खत्म हुई बी पे। नाउ दिस 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन व्हिच वे? दे ऑल आर इन पैरेलल, पैरेलल मतलब डायरेक्ट एडिशन, सो C/2 प्लस C/2 यानी 2C, तो ये हो गया 2C और ये C/2 यानी C। अब इसके अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस तो हमने देखा है C1 इंटू C, C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, सो 2C स्क्वायर अपॉन 3C, सो 2C/3, दिस इज द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB फॉर दिस गिवन डायग्राम। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, खास याद रखने का है, जो दो पॉइंट्स के बीच में पीडी
वहाँ पे जिसे कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन दो ही ब्रांच में होना चाहिए। देखो यहाँ से चार्ज है दो ही ब्रांच में हो, तीन ब्रांच में कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो मोस्ट IMP. So now we move towards the next 22 number. So friends, these all questions are most IMP. Once again, solve yourself at your home and try to obtain the answer. Now question number 22. If the charge on a capacitor is increased by 5 coulomb, then energy stored is increased by 21%, then what is the original charge on the capacitor? ये रहा कैपेसिटर, इसका चार्ज है Q, तब इसमें एनर्जी है U। अब इस कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज करके बनाया जाता है Q + 5, then न्यू एनर्जी U डैश। बट न्यू एनर्जी सिंपली 21% मोर देन दिस वन। सो U पहले था ही, ये इनिशियल तो था, इसमें 21% ऐड कर देते हैं। सो U + 21 यानी 21/100। सो U डैश यानी U + 0.21U इन शॉर्ट 1.21U, इतना होगा न्यू एनर्जी। तो ये U डैश एनर्जी कब? जब चार्ज हो Q + 5, और ये U एनर्जी कब? जब चार्ज हो Q। तो एनर्जी का फॉर्मूला ऑब्वियसली Q²/2C, अगर इधर होगा Q + 5 द होल स्क्वायर, 1.21 इधर U की जगह होगा Q²/2C, 2C कैंसल। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए Q + 5 1.1Q, बिकॉज इफ यू रिमूव स्क्वायर देन रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा 50 कूलम्ब। दिस इज योर आंसर। सो इनिशियल चार्ज वाज 50 कूलम्ब। अच्छा क्वेश्चन, ऑलरेडी कंप्लीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। सो एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ 20 वी कैन से दैट 3। सो नाउ थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज A point C, देयर इज अनदर कैपेसिटर C and C, and then capacitor C, then again capacitor C, and there is again triangular type structure B। ये सभी क्वेश्चन में जितने कैपेसिटर है C, व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस? चेक कर लिया, डाटा रेडी? तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। इधर देखो ये जंक्शन 1 2 3, इधर जंक्शन 1 2 3, जंक्शन को पहले डिटेक्ट करो, लिखो X Y, और ये पॉइंट देखो P, जहाँ पे A और P का सीधा कॉम्बिनेशन, A पॉइंट S जहाँ पे B और S का सीधा कॉम्बिनेशन। दो पॉइंट सीधा कॉम्बिनेशन में हो, सीधा वायर से जुड़े हो, मतलब वो दोनों पॉइंट से एक B और S एक ज। तो सबसे पहले ये रहा AP आपका दोनों, इसी तरह इधर S और B दोनों। अब शुरू करते हैं A से P, दोनों एक ही है। A से अपन लोग X में जाएंगे और A से P to X जाएंगे, मगर A और P में से पहले X में जाना है, तो इधर है X। तो सबसे पहले A में से, जिसे कह सकते हैं ये रहा है, A में से X में जाते हैं वाया कैपेसिटर C, ये आ गया। अब A to P यानी तो वही है, अब P to X अगेन, तो P to X बट वाया C, ये आ गया दोनों कैपेसिटर। अब देखो P का टाका जुड़ा है Y के साथ, तो P और इधर अपन लोग जिसे कह सकते हैं Y, रेडी? तो P को जोड़ देते हैं इधर Y के साथ, यू कैन सी Y, और Y में से जाना है B और S, तो वही रहा B। मगर Y में से B और S में जाने के लिए दो रास्ते प्यार के, यानी इधर से दो रास्ते प्यार के। एक कैपेसिटर है वो S के साथ, और एक दूसरा कैपेसिटर भी S के साथ। आ गए दोनों, तो ये दोनों हो गए। बचा कौन सा कैपेसिटर है जो X और S के बीच में जुड़ा है, ये रहा X और ये रहा S, तो इधर जोड़ दो कैपेसिटर C, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो अपन लोग जानते हैं ये दोनों किस तरह पैरेलल, तो इसका होगा 2C। ये दोनों किस तरह पैरेलल, तो 2C। तो अपर ब्रांच का फॉर्मेशन होगा 2CC, और लोअर ब्रांच का फॉर्मेशन होगा C2C, यू कैन सी, रेडी? अब इसको सोल्व करना है, यानी बहुत इजी। अपर ब्रांच का कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, 2C इंटू C, 2C प्लस C यानी 2C²/3C यानी 2C/3। तो लोअर ब्रांच में भी वही स्ट्रक्चर है, तो उसका भी क्या होगा 2C/3। मगर अपर ब्रांच लोअर ब्रांच कनेक्टेड इन पैरेलल, सो नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB
2 टाइम्स ऑफ 2c/3 यानी कि 2c/3 प्लस 2c/3 2 टाइम्स ना पता चले तो सो 4c/3 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सो बी अलर्ट। मस्त क्वेश्चन नंबर 23। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द 20 नंबर 4। सो नेटवर्क को अच्छी तरह एनालिसिस करना है 24th नंबर। और जो बंदे बी ग्रुप रिलेटेड है और जिसको जेडब्ल्यू में आगे बढ़ना है, ए ग्रुप में फिर 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, कुछ लोग बोर्ड थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग जेडब्ल्यू थ्रू। तो खास इसको मेरी विनती है कि ये 40 के 40 क्वेश्चन एक नोटबुक में आ जाने चाहिए विद सॉल्यूशन अपने आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 वेरी आईएमपी। सो दिस आर द 2 प्लेट्स of a parallel plate capacitor. Now and the distance between these 2 plates 4x. Distance between these 2 plates 4x. Ready? And what is the next point? And the electric field between them is E naught। और इधर जब एयर है, only air, तब इलेक्ट्रिक फील्ड है E naught। Now a dielectric slab, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड थिकनेस x इज प्लेस्ड। अब इसके अंदर कुछ ऐसा काम करते हैं, इधर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया, टोटल डिस्टेंस 4x था, x थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, तो ऑब्वियसली ये दूरी होगी 3x। अब क्या, अब इसको अपन लोग को पूछा है देन व्हाट इज द पीडी बिटवीन 2 प्लेट्स। इसमें खास लिखा है थिकनेस डी बिटवीन देम इन कांटेक्ट विद द वन प्लेट। इन दिस कंडीशन व्हाट इज द पीडी बिटवीन 2 प्लेट्स। ओके फ्रेंड्स, दिस इज यू कैन सी दैट योर टारगेट। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 प्लेट्स आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखने वाली बात है, यहाँ पे बैटरी नहीं है, देखो बैटरी होती तो पोटेंशियल सेम ही रहता, मगर इधर बैटरी रिमूव करने के बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं, मतलब पोटेंशियल बिकम्स 1/k टाइम्स। अगर इधर का पोटेंशियल पता हो तो अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि डिस्कस कर लेते हैं, मगर अगर इधर चेंज हो जाएगा तो ऐसे पोर्शन को सोल्व करने के लिए सेगमेंट कर देने का। देखो ये पहला सेगमेंट और ये दूसरा सेगमेंट, इधर है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इधर है एयर, तो ये जो 2 पॉइंट्स है उसको सेगमेंट 1 कह देते। सपोज हियर पोटेंशियल डिफरेंस V1 और सेगमेंट 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, इधर V1 इधर V2 और टोटल पोटेंशियल है V। सो वी कैन राइट टोटल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बिंदास। V अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब V को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंट करना है, और अगर ये आप जानते हो E इज इक्वल टू V अपॉन डी, सो V इज इक्वल टू डी, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। मैं ऑलवेज अपॉन डी बोलता हूँ, काफी लोग बोलते हैं V इज इक्वल टू V बाई डी, सो डोंट डू दिस, V अपॉन डी। सो V इज इक्वल टू ED, सो इधर V1। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और एयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो E नॉट, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है E और डिस्टेंस है x प्लस V2 का पोटेंशियल डिफरेंस में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट और डिस्टेंस है 3x। और इन डाउट, मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद, देखो, और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1/k टाइम्स, यानी कि E इज इक्वल टू ओरिजिनल जो था E नॉट उसके बदले हो जाएगा E नॉट बाई k, इधर x इधर होगा 3 E नॉट x, मगर k कितना है 3, सो अपन लोग इधर 3 रख देते हैं डायरेक्ट। सो V इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले तो 9 प्लस 1, so 10 E naught x upon 3. This is your potential difference between 2 plates after inserting dielectric material of thickness x. IMP, तो ये PD वाला भी क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया है। हमने इलास्ट्रेशन नंबर 2.8 3 तरीके से किया था, उसमें एक तरीका ये था, चेक करना याद आए तो, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है गजनी पार्ट 2 3 होते हैं, एक बार थोड़ी देर बाद सीखा बाद में स्वाहा, so continuous revision required friends, very important. Now you think about the question number 25. Okay, question number 25th. So here 25th number, a parallel plate capacitor having capacitance of 12 picofarad is charged by a battery to a potential difference of 10 volt between plates. ऐसा 12
माइक्रोफेराड की पिकोफेराड, ओके पिकोफेराड, कैपेसिटेंस से पिकोफेराड, उसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दी है 10 वोल्ट की और इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। अभी कोई मटेरियल नहीं है। ओके, नाउ दिस चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड। अब इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ये कैपेसिटर को इधर। ओके, एंड पैरेलल स्लैब ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.5 is slipped between the plates and work done by the capacitor on the slab is blank। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो ये कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, अब इस कैपेसिटर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, ये रहा कैपेसिटर, और अब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड कर देते पोर्सेलिना। बट यू कैन सी here dielectric material is inserted after removal of battery. That means who is the hero? Charge is the hero. Charge remains constant. बाकी सबका अपन लोग जानते हैं, potential becomes 1 upon k times, electric field becomes 1 upon k times. What about if the potential, sorry, energy stored between two plates of capacitor, it becomes k times. ना पता चले तो देखो, अब अपने को पूछा है find, we can say that work done। तो सबसे पहले जब 12 पिकोफेराड के साथ 10 वोल्ट बैटरी थी, तब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई थी? U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C है 12, वो भी पिकोफेराड, और V है 10 यानी उसका स्क्वायर, सो 6 × 10⁻⁻10 जूल, इतनी एनर्जी होगी। अब अपन लोग इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। खास JEE नीट का 12th पार्ट देखना, कैपेसिटर, उसमें हमने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था। जब अपन लोग डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें तब हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि इधर फ्रिंजिंग इफेक्ट थ्रू चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स के तहत ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जूम से अंदर आने लगता है। मगर अपने को इसको बहुत ही स्लोली इंसर्ट करना है, तो ये फोर्स के सामने हमें एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स, यानी हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो वो वर्क डन फाइंड करने के लिए सिंपली एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना पड़े। इधर जो एनर्जी है, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद एनर्जी, तो अपन लोग तो जानते हैं वो न्यू एनर्जी U डैश, तो इट इज 1/2 C डैश V डैश स्क्वायर। डैश मतलब आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, कोई भी हो, बैटरी कनेक्ट हो या ना हो, जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करो तब कैपेसिटेंस तो K गुना हो जाए, तो 1/2 C डैश की जगह CK, V डैश बनेगा V/K, याद करो कंसेप्ट। सो 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, K/1K, इधर स्क्वायर है तो एक बचेगा, ये क्या है? ये तो अपना U है। सो U डैश इज इक्वल टू U/K, यानी 6 × 10⁻⁻K। K की वैल्यू इधर दी है। सो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.5, आपके पास भी डेटा है, तो इसका आंसर आता है कुछ 0.923 into 10⁻⁻10. What is the work done? It is the energy difference. So 6 into 10⁻⁻10 minus 0.93 into 10⁻⁻10, and 5 point something, it is 5.8, and 508 into 10⁻12 जूल, पिको जूल एनर्जी, इतना आंसर आता है। Most time पे questions, very important point, don't forget. So this is your question number 25. Now we discuss 26 number. अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, नो डाउट। लाइट होनी चाहिए और उसके लिए बिल भरना पड़े रेगुलरली, यानी बैठना पड़े घर पे, दूसरों की बत्ती तले ज़्यादा उजाला नहीं चलता, डोंट फॉरगेट। सो 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26, 6 प्लेट्स, 1 2 3 4 5 6, इस तरह अरेंज है। इसका लेंथ ऑफ साइड L है, L L L L L, डिस्टेंस इधर D है, इधर 3D है, तो इसका नेट कैपेसिटेंस फाइंड करो। तो ये दोनों प्लेट्स मिलके एक कैपेसिटर बना, ये रहा 1 2 3 4 को तो भूल जाओ क्योंकि ओरिजेंटल कोई कनेक्शन ही नहीं। 5 6 वापस कैसे दो प्लेट्स, तो 5 6, तो ये दोनों कैपेसिटर बन गए पैरेलल। सो नेट कैपेसिटेंस बनेगा C1 प्लस C2। C1 का फॉर्मूला, सो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, डिस्टेंस D है ना, इधर आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, इधर आएगा 3D, क्योंकि इधर डिस्टेंस 3, मगर इधर एरिया
A1 और A2 लिखना पड़े, क्योंकि इधर इसका एरिया फाइंड करेंगे L2, मगर दोनों लेंथ सेम है इसलिए एरिया भी सेम ही रहेगा। तो एप्सिलॉन नॉट L2 कॉमन, A1 भी L2 लेंथ इंटू साइड एंड D भी कॉमन, सो 1 + 1/3। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको पता चल गया 4/3 एप्सिलॉन नॉट H² अपॉन D। दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा बॉम्बे। नाउ 27, अब ये आंसर तो अपन लोग सोल्व किए बिना भी बोल सकते हैं। कोई बोले कैसे, क्योंकि रट्टे मारे हो ऐसे। सो अपन लोग जानते हैं इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया है, यू नो दैट वेरी वेल। तो इसका नेट कैपेसिटेंस सिखाया गया, फिर भी सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में नंबरिंग, इसको ए और बी, पहले 1 2 3 4 4 प्लेट्स से टर्न बाय टर्न प्लेट्स का कॉम्बिनेशन बनाए। 1 और 2 प्लेट्स मिलके कैपेसिटर बनाएंगे, यानी 1 और 2 मिलके शादी रचाएंगे नहीं। यहाँ वो कैसे पता चले, चेक द फैमिलीज। प्लेट नंबर 1 फ्रॉम फैमिली ए, प्लेट नंबर 2 फ्रॉम फैमिली बी, दोनों अलग अलग फैमिली में से हो तो शादी पॉसिबल है। मैंने बोला था ए से शुरू करने का, ए में से प्लेट नंबर 1 का टाका 2 के साथ, ए 2 के साथ, और 2 फ्रॉम विच फैमिली बी, 2 फ्रॉम फैमिली बी। चलो 1 2 हो गया, 2 3 के बीच में शादी होगी यानी टाका भिड़ेगा, यानी कैपेसिटर बनाएंगे। यस, बिकॉज 2 फ्रॉम बी 3 फ्रॉम ए, अलग अलग फैमिली में से, तो 3 फ्रॉम ए एंड 2 फ्रॉम बी। अब 3 4 भी अलग अलग फैमिली में से, तो ऑब्वियसली उसका भी टाका भिड़ी देते, 3 फ्रॉम ए 4 फ्रॉम फैमिली बी। तो ये तीनों कैपेसिटर्स तो पैरेलल में, तो इसका नेट कैपेसिटेंस 3C होगा। सो 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज द राइट आंसर। ऐसे प्रैक्टिस हमने की है, इसका वीडियो लेक्चर चेक करो और सोल्व करो। मोस्ट टाइम भी ये क्वेश्चंस भी नीट कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 कि 28, सो चेक इट। क्वेश्चन नंबर 28, ओके सॉरी 27 हमने कर दिया। 28, the capacitance of a parallel plate capacitor is 5 picofarad. When glass slab is inserted between them, then PD becomes 1/8 times. Then what's the dielectric constant? First question 28, ये दो प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं, जिसे कह सकते हैं पीडी बन जाता है 1/8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। पहले ओरिजिनल पीडीवी था जब ये स्लेब नहीं था तब, मगर जैसे ही इंसर्ट करे तो 1/8 बन जाता है। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अरे बैटरी के ऑप्शन में अपन लोग जानते हैं कि स्लेब इंसर्ट करो तो पोटेंशियल क्या बनेगा, पोटेंशियल बिकम्स 1/k टाइम्स। इसको कंपेयर करो, k मिलेगा 8, वेरी इजी। सो k इज इक्वल टू 8। 28 नंबर, नाउ 29। सो 29 नंबर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में there are 10 capacitors, each of capacitance 10 picofarad, the ratio of the maximum to minimum capacitance blank। चलो ये ट्राई करते हैं। सबसे पहले 10 कैपेसिटर्स दिए हैं, हर एक का कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड। इसको आपको जो कनेक्ट करना करो, मुझे मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए फिर मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए, उसका रेशियो। चलो ट्राई। इसका रेशियो अपन लोग जानते हैं सी मैक्स। मैक्सिमम कैपेसिटेंस के लिए किस तरह का कनेक्शन चूज करेंगे, 10 कैपेसिटर से उसको किस तरह कनेक्ट करो तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिले। वी आर डीलिंग विद कैपेसिटेंस, ऑब्वियसली टॉप 10 मैक्सिमम कैपेसिटेंस, पैरेलल इज द बेस्ट चॉइस। तो 10 कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करें तो सी मैक्स पैरेलल यानी 10 + 10 + 10 अप टू 10 टाइम्स, तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलेगा 100 पिकोफैराड। कोई बोले इधर तो माइक्रो है, बोले पिको रहा। अब आता है सी मीन, मिनिमम कैपेसिटेंस के लिए सीरीज। सो 1/C मीन इज इक्वल टू 1/10 + 1/10 अप टू 10 टाइम्स, यानी कि 10/10 यानी 1, तो गुलाटी मारो तो भी 1, उसको रख दो पिकोफैराड। तो सी मैक्स से 100
सी मीन है 1 पिकोफेरेड रेशियो के कारण कोई टेंशन नहीं, सो 100:1। आंसर ये क्वेश्चन रजिस्टर में पूछा हुआ है, सो डोंट फॉरगेट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ डिस्कस 30 नंबर। द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब ये तो आपको आना ही चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस for isolated conducting sphere? You know that it is 4 pi epsilon naught r, so C directly proportional to r, very IMP, don't forget. So question number 30 easy। अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ना पूछे, याद रखना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ज़्यादातर स्लिपरी केसेस भले इजी हो मगर आप जहाँ पे भी फंस सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को ये लोग ज़्यादा तवज्जो देंगे। डोंट फॉरगेट, आइडियलिज्म ज़्यादा बहुत ही डेंजर, पूछने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आप नीट का पेपर या जेडब्ल्यू का एनालिसिस करना, पता चलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। सो वी डिस्कस 31 नंबर। अ पैरेलल प्लेट a capacitor of 2 microfarad capacitance is charged up to a potential of 200 volt. Now if two plates are connected by wire, then how much heat energy? Yes, ये question अच्छा। This is, you can see that 2 microfarad capacitor, it is connected with a battery of 200 volt. Then what is the heat energy if this wire is connected to other wire? अब देखो इसमें लोगों को हीट एनर्जी का फॉर्मूला तो सोल्व कर देते हैं, मगर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर दिस कैपेसिटर is connected with 200 volt battery, then what happens, this capacitor is being charged, and because of because of charging of capacitor, now charge is deposited, or I can say that charge is stored। charge stored that means energy। ये देखो fully charged capacitor just in front of you, q amount of charge, this is called fully charged capacitor। Keep in mind, any fully charged capacitor is disconnected from battery, and if you connect with any other component that means resistor, inductor, any other type of component, suppose this is wire also offers some resistance। जैसे ही फुली चार्ज कैपेसिटर को रेजिस्टिव वायर के साथ कनेक्ट करो, इधर से चार्ज दौड़ना शुरू। जैसे ही चार्ज दौड़ना शुरू हो जाए, मतलब करंट फ्लो होना शुरू, चार्ज इस तरह दौड़ना शुरू करे, उसको कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर से चार्ज भागने लगता है, चार्ज भागे मतलब करंट जागे, तो ये करंट मिला, और ये करंट का रेजिस्टर में से पास होना मतलब हीट एनर्जी। बहुत साल पहले की बात है, याद आया, I2RT। तो ये हीट एनर्जी, मगर ये हीट एनर्जी मतलब ये कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी थी वही है 1/CV²। तो C2 माइक्रोफेराड एंड V200 द होल स्क्वायर, इसको सोल्व करो यानी आंसर। सो वेरी इंटरेस्टिंग 31, कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो जरा इसको, रेडी। अब अपन लोग डिस्कस करने वाले, इसका आंसर है 4 × 10⁻² जूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, तो कभी कभार वर्डिंग थ्रू ये लोग आपको हैरान परेशान कर सकते हैं। पैरेलल प्लेट, दिस इज 32 नंबर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ C। If the distance between the plates of capacitors becomes half and its dielectric medium is introduced between the plate, its new capacitance will be 3C। What is the dielectric constant of medium? चलो इधर अपने को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है C, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस है C, और अब इसके बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है पहले D, अब इसके बीच में डिस्टेंस हाफ कर देते हैं, डिस्टेंस कर दिया हाफ, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांस्टेंट के वाला इंसर्ट करे, तो न्यू कैपेसिटेंस बन जाता है कितना, 3C। न्यू कैपेसिटेंस 3C। सो व्हाट इज द के? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, आपका अनसोल्ड है 2.5 और 2.6, चेक करना है। तो न्यू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, के × C, मगर
ये तो जानते हो ना, जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करो कैपेसिटर बिकम्स के टाइम्स। तो के सी का मतलब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, मगर इधर डी बाई टू क्योंकि बोला हुआ है, और सी डे से इधर 3c, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू 2 कर दो, अरे गुलाटी मार के ऊपर, तो सी ए जिसे कह सकते सी बन गया, सो के इंटू टू, सी कैंसल, so k becomes 3 by 2 यानी 1.5. So dielectric constant of this material 1.5. So this is 32 number. Now we'll think about 33. And all questions are very IMP. 33 number. The coil of dielectric constant 2 is filled in a capacitor of capacitance C. Here a capacitor, इसका कैपेसिटेंस था C, और जब कोयल भरा है तब सी है, यानी सी डैश अपन लोग कह सकते हैं सी है। तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना होगा? नाउ इफ ऑयल इज रिमूव देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस? तो ऑयल इज रिमूव्ड 33 नंबर, तो ऑयल इज रिमूव दैट मींस ओनली एयर, तब कैपेसिटेंस ओरिजिनल कैपेसिटेंस सपोज ऑयल है तब कैपेसिटेंस सी है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस अपन लोग सी डैश ले ले। तो हम तो जानते हैं कि जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करे तो न्यू कैपेसिटेंस होता है के टाइम्स ऑफ सी। ये न्यू कैपेसिटेंस, दिस इज आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दिस इज बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इधर सी न्यू है सी, के सी है इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल, तो सी इनिशियल क्या होगा? सी बाई के तो दिया है 2, तो आंसर आएगा सी बाई 2, इनिशियल होगा सी बाई 2। रेडी? So this is your question number 33. Now 34 number. So ये भी बेस्ट क्वेश्चन, मगर जिसने फंडामेंटली डिस्कशन में इधर ध्यान दिया होगा उसको चुटकियों में आंसर पता चलेगा। ये रहा कैपेसिटर C1, इसको कनेक्ट किया है बैटरी V1 के साथ, अब C1 फुली चार्ज हो जाता है, इसको बैटरी से किया डिस्कनेक्ट, और दूसरा कोई अनचार्ज्ड कैपेसिटर है C2 जिसका चार्ज है 0, इसके ऊपर तो चार्ज होगा ना, यहाँ से वो लेके आएगा। तो अब ये दोनों का जिसे कह सकते पीडी फाइंड करना है, इसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। सो यू नो दैट C1 V1 C2 V2 upon C1 plus C2, but what is the V2? 0. Why? Because C2 was connected with no battery, or I can say that battery with zero potential. तो ये गया, तो C1 V1 upon C1 plus C2, this is your answer, common potential related. Check करो ये आंसर। So this is question number 34. Okay, और आंसर है B, C1 V1 इधर भी दिया, डोंट। Now question number next 34 के बाद 35. This is 34. Now we'll discuss 35. सभी क्वेश्चंस जरा देखो। 35 नंबर, question number 35. Here what happening 35, the total energy stored in a parallel combination of n identical capacitor is playing PD applied V volt. अच्छा question. There are, we can say that n number of capacitors. अब ये आपका कंसेप्ट है, सीरीज हो या पैरेलल, अनगिनत कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करो, अनगिनत को पैरेलल में कनेक्ट करो, ये कंसेप्ट में डिस्कस किया। एनर्जी की बात आए तब आप जानते हो कांस्टेंट ही रहता है, एनर्जी रिमेन सेम फॉर सीरीज और पैरेलल, मतलब एनर्जी पोसेस एडिटिव नेचर, सीरीज में भी एडिशन, पैरेलल में भी एडिशन। तो टोटल एनर्जी फाइंड करना हो तो U1 प्लस U2 प्लस डेस 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 UN, अगर ये सभी सेम ही है 1/2 C1 V स्क्वायर, मगर ये कितने कैपेसिटर है n, तो n टाइम्स कर देंगे क्योंकि ये एडिशन कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स, तो आंसर आएगा n टाइम्स ऑफ 1/2 CV स्क्वायर। पैरेलल में कनेक्ट किया होता तो भी, सीरीज में भी तो यही। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। सो नाउ 36 नंबर क्वेश्चन, ये 35 को अच्छी तरह देखना, इसमें दम है। सो क्वेश्चन नंबर 36, हियर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, टोटल डिस्टेंस है, जिसे कह सकते हैं कि इनिशियल कैपेसिटेंस पहले दिया है, एयर है तब 9 पिको फेराड। नाउ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड,
ओके, टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स डी। अब डायरेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते, देखो टोटल डिस्टेंस डी है, इतने पोर्शन में d/3 जितना डिस्टेंस है उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 मटेरियल भर देते हैं, और इधर जो डिस्टेंस बचेगा ऑब्वियसली 2d/3 होगा। इसमें डायलेक्ट्रिक मटेरियल है 6, तो इसका नेट कैपेसिटेंस फाइंड करो। तो सबसे पहले ये दोनों कैपेसिटर्स, ये दोनों प्लेट सॉरी, फिर वापस दोनों प्लेट्स इस तरह, ये बन गया C1 C2। तो इसका नेट कैपेसिटेंस होगा C1 इंटू C2, C1 प्लस C2। अगर C1 फाइंड कैसे करेंगे, तो इधर C1 फाइंड करते हैं। C1 का फॉर्मूला देखो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/3, 3 3 जा 9 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मगर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वो तो कैपेसिटेंस है, देखो ओरिजिनल इनिशियली वो 9 है, तो इधर अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि C1 को 9 इंटू वी कैन से दैट 9 यानी 81। रेडी, या इसको C कह दो, कुछ ना करना हो तो C कर देते, डोंट वरी। C1 9C, इधर बोलने में जरा ध्यान रखना है, 9C चिकना कैसे है, मैं बोले इधर चिकना 9C, डोंट फॉरगेट 9C। सो नाउ विल थिंक अबाउट द C2। तो C2 फाइंड करना हो तो कैपेसिटेंस 6, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, इधर होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d/3, 3 6 जा 18, 18 डिवाइड बाय 2 अगेन 9 एप्सिलॉन ए अपॉन डी 9C, लोचे 9C, डोंट फॉरगेट। सो 9C मैं बोल रहा हूँ जरा ध्यान रखना, 9C। सो अपन लोग 9C इंटू 9C अपॉन 9C प्लस 9C। सो ये होगा 9C इंटू 9C, कोई बोले मल्टीप्लाई करो, नहीं करना है, 2 9C, ये कैंसर 9C बाई 2 4.5C। अगर C है 9 तो 9 इंटू 4.5 जो आंसर आया वो आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत ही IMP और पूछ सकते हैं। सो आपका आंसर आएगा ऑब्वियसली 40.5, जिसे कह सकते हैं कि पिकोफेराड, या 2 टाइम्स ऑफ 9C किया ना, इधर 9C कैंसर, C है 9, 81/2, तो इधर समथिंग वाज टू रॉन्ग, आई थिंक 9C कैंसर 2 टाइम्स ऑफ 9C चलेगा, नो डाउट। रेडी, सो इसमें आंसर है वो करेक्शन कर लेना, इसका जो भी आंसर है वो ऑप्शन में सेट हो उसके मुताबिक। ओके, फिर भी मैं देख लेता हूँ क्योंकि यहाँ तक रेडी है, दोनों 9C है। Okay, yes, there is a mistake, you can see here C already with us, so 9/2C, 9C cancel कर दिया हमने, so 4.5 into 9, so 9 4 जा 36 multiply by 4.5 sorry plus यानी 40.5 बराबर है, परफेक्ट 40.5। मुझे लगा 36 समथिंग आ रहा है मगर 4.5 बाकी है, so perfect। now we'll think about the next। तो जरा चेक कर लेना आंसर, क्योंकि ये देखो ऐसा प्रेजेंस माइंड थोड़ा अलग ही है। आप एसी में बैठ के क्वेश्चन सोल्व करो और पेपर सीन यानी कि एग्जाम सीन है वो अलग होता है। ऊपर फैन चलता हो फिर भी पसीने पसीने लोग हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है लास्ट चांस है। सो नाउ फ्रेंड्स वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सो 37 64 स्मॉल ड्रॉपलेट्स, इसका शॉर्टकट्स याद रखो, n droplets combine and form a bigger drop, then what is the capacitance of bigger drop? It is n raised to 1/3 of the capacitance of smaller drop. This is the most IMP shortcut। So here capacitance of big drop, n here number of droplets 64, in our case c smaller, 64 का क्यूब रूट यानी 4। तो what is the ratio of big to small capacitance? It is 4:1। तो ये क्वेश्चन भी देख लो, ये शॉर्टकट एक बार लिख देना अच्छी तरह। Okay, now we'll think about the next question number 37 हमने देखा
अब 38, then 39 and 40. Okay, 38, two capacitors of capacitance 2 microfarad and 4 microfarad are connected in series. Then find the ratio of their potential, sorry, energy stored in it. Okay, ये क्वेश्चन में दम, ऐसे क्वेश्चन भी IMP. So just concentration required. You can see this is your 38 number. So these are the two capacitors, 2 microfarad, 4 microfarad connected in series with battery of 10 volt. चलो इसका एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है. पहले तो सीरीज, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट. कैसे पकड़ो फटाफट. सीरीज कॉम्बिनेशन, यू नो दैट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. अब इतना चार्ज होगा 2 पे, उतना ही चार्ज होगा 4 पे, क्योंकि सीरीज यानी चार्ज कांस्टेंट. अब ऐसा एनर्जी का फॉर्मूला उठाओ जिसमें चार्ज आए, जो हम लोग जानते हैं Q2/2C. अगर Q तो कांस्टेंट है तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस. तो इधर रेशियो फाइंड करें U1/U2, ये C1/C2. सो U1/E2 यानी उल्टा हो जाएगा ना इधर, C2/C1, तो C2 यानी 4/2. सो U1/U2 इज इक्वल 2:1. अगर यही न्यूमेरिकल में एक ज वर्ड यूज करें, 2 and 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी ऐसा कुछ होता 2, 4 एंड बैटरी, तो पैरेलल कनेक्शन, देन कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस. तो ऐसा एनर्जी का फॉर्मूला पकड़ो जिसमें पोटेंशियल आए, तो इसमें U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. सो U1/U2 इज इक्वल टू C1/C2. सो 2/4 बना. देखा, एक वर्ड है वो वर्ड चेंज कर देगा. एक का डिफरेंस है WORD, WRLD, यू नो दैट मोस्ट टाइम पीस. ऑफ 38 नंबर के बाद 39 नंबर का क्वेश्चन जरा अपन लोग सोल्व करते हैं. सो कैन भी बोर्ड में से जाना नहीं चाहते कि मजा आ गया इसलिए. सो नाउ 39 नंबर. सो डेटा इनकम्प्लीट है, फिर भी अपन लोग ट्राई करते हैं. इन 2 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ PDV एंड चार्ज टिल एनर्जी बिकम्स इक्वल एज सीरीज कनेक्शन. मगर सीरीज कनेक्शन में कितने, N1 कैपेसिटर्स ऑफ C2 कैपेसिटर्स. तो देखो N2 कैपेसिटर्स, डेटा इनकम्प्लीट है, अपन लोग ट्राई करते हैं. N2 कैपेसिटर्स, ओके, और इधर जिसे कह सकते हैं कि पहले मैं बताता हूँ. N2 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ PDV. चलो N2 कैपेसिटर से ऐसा 1, 2 N2, इसका कैपेसिटेंस दिया है C. देखो ये लोचे है, इसमें डेटा करेक्शन है. C2 इसका कैपेसिटेंस है C2. तो इसका एनर्जी होगा क्या, एनर्जी इन सीरीज. तो इसका एनर्जी अपन लोग जानते हैं 1/2 C2V2². इसको पोटेंशियल तो V रखा है, सॉरी, पोटेंशियल V C2V², मगर मल्टीप्लाई बाय N2 कर दूँ ना. अरे सीरीज हो या पैरेलल, एनर्जी एडिटिव, तो डायरेक्ट एनर्जी कर दी. अब अपन लोग को पूछा है जिसे कह सकते हैं कि N1 कैपेसिटर से जो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, ये सीरीज में थे, ये C2 कैपेसिटेंस, N2 जितने कैपेसिटर सीरीज में, अब सॉरी पैरेलल में, इसलिए हमने इधर डायरेक्ट पॉइंट लिया. अब अपन लोग को पूछा है, मैं डेटा इनकम्प्लीट इसलिए थोड़ा अलग चेंज करके दे रहा हूँ. देखो C1 इस तरह के N1 कैपेसिटर से, they all are connected in parallel, sorry, series with potential of 4 volt बैटरी. इधर 4 volt, ये सब पैरेलल में थे, सॉरी, इस तरह पैरेलल में. तो इसका एनर्जी क्या होगा, दिस इज पैरेलल UP, दिस इज सीरीज. सीरीज हो तो भी अपन लोग लिख सकते हो 1/2 N2. ओके, इधर N1 कैपेसिटर है, N1, और इसका कैपेसिटेंस फाइंड करके भी करो तो भी कोई टेंशन. इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 1/C1 + 1/C1 अप टू N1. सो N1/C1 यानी C1/N1 होगा इसका नेट कैपेसिटेंस. तो C1/N1 4V², यानी कि 1/2 C1/N1 16V². अब ये दोनों एनर्जी सेम है तो कंपेयर करते हैं.
1 half n2 c2 v square 1 half c1 n1 16 v square 1 half कैंसल। अपने को c2 फाइंड करने का पूछा है तो c2 इज इक्वल टू 16 c1 अपॉन n1 n2। दिस इज योर आंसर। मगर ये इनकम्प्लीट डेटा होने के कारण पेपर में आपको इसके मार्क्स मिल सकते हैं, मगर ये अच्छा क्वेश्चन, डोंट वरी। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन वी वुड लाइक टू डिस्कस 39 के बाद 40, दिस इज 39 नंबर। सो नाउ लास्ट 40 नंबर। So friends, this journey you can see that now comes to end, so be ready for it. Number 40 also very interesting. इसमें लोगों को पता नहीं चलता है तो एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज यू। ये रहा आपका कैपेसिटर, इसको बैटरी वी के साथ कनेक्ट किया, इसमें एनर्जी स्टोर होती है, यू होगा 1 हाफ सी वी स्क्वायर। अब इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया, ये किया, जो फुल्ली चार्ज उसके साथ दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जो टोटली अनचार्ज है। इसके ऊपर तो चार्ज होगा ना, यहाँ से आएगा वो, मगर जो दूसरा कैपेसिटर है वो पहले से डबल कैपेसिटी पोजेस करे, तो दोनों की एनर्जी फाइंड करो। चलो इसकी एनर्जी होगी U1, इसकी होगी U2, तो U1 का फॉर्मूला होगा C1 v स्क्वायर, इधर होगा C2 v स्क्वायर। क्यों मैंने V लिखा इधर V1, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन सेम। तो चलो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आज इसका यूज किया था, C1 V1 अपॉन C2 V2। अब इसमें कॉमन फॉर्म वैल्यू रखते हैं, C1 है C, V1 इट इज वी कैन से दैट V1 इधर पहले V1 पहले पॉइंट में रखते हैं। V1 इज द कैपेसिटेंस फॉर पोटेंशियल फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, V2 तो 0 है क्योंकि सेकंड कैपेसिटर अनचार्ज है, C1 है C, C2 है 2C, तो कॉमन पोटेंशियल होगा CV1 अपॉन 3C, यानी कि V1/3। चलो उठाते इधर, सबसे पहले 1 हाफ C1 है C, V है V1/3 द होल स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 हाफ CV स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होगा 1/9। तो U1 होगा, ये 1 हाफ CV1 V1 स्क्वायर क्या है, ये U है, तो आंसर आएगा U/9। तो ऑब्वियसली इसका आंसर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं मेथड में ले जाना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को यही मजा आता है। C2 की जगह 2C और V की जगह V1/3 द होल स्क्वायर, तो 2 कैंसिल, या 2 कैंसिल ना करो, रहने दो, क्योंकि पहले 1 हाफ C1 स्क्वायर, देखो 1 हाफ CV1 स्क्वायर कर दिया। अब 2 जिसे कह सकते हैं कि अपन लोग पहले रख देते इधर, और 3 की जगह हो जाएगा 9, तो ये होगा U, यानी 2U/9। तो U2 होगा 2U/9, U1 होगा U/9, तो दोनों का आंसर आएगा U/9, 2U/9। सो फ्रेंड्स, मोस्ट टाइम की क्वेश्चंस वी डिस्कस, बेस्ट 40, सुपर 40 क्वेश्चंस। Part 1 we discussed 15 and this part 2 25 questions. Solve these all questions with logically, and now in next lecture we'll start chapter number 3 again. So revise these all points fundamentally. Thanks.